ابو حسن صاحب بات ہوگی ہے جی. اصول میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے آپ کو جو دلیل دینی نا آپ کے منہج کی دینی ہے. یعنی ہمارا منہج ہے قرآن ہاں حدیث ہاں اجماع جیسا کہ اور مثال کے طور قیاس. پر، ہاں کیونکہ جیسا مثال کے طور پر اہل سنت حنفیوں کا ایک جی فتویٰ ہے، وہ میں بعد میں اس جی کو رکھوں گا، یہ بھی میں اس میں بیچ میں لے کے آؤں گا. میں اس لیے پیپر تھوڑا لیک بھی کر دیتا ہوں کہ اگر نہیں ایک نہیں، مفتی، یہ پیپر لیک کرنا نہیں ہے، آپ نہیں دلائل میں آپ کو پیش بتا رہا کریں. ہوں، سن بھائی لیجیے. وہ پیپر اگر ایک لیک کرنا نہیں مفتی اسے کہتے. جی بھائی اگر میرے ایک پاس مفتی ٹائم شارٹ ہے، میں نے ایئرپورٹ کے لیے جانا ہے، مجھے کہیں جانا ہے، مہربانی بار بار بیچ نہ بولے، میرے پاس ٹائم شارٹ ہے. ابو حسن صاحب سن لے ذرا. جی اگر مثال اہل سنت کہتے ہیں حنفی بریلوی کہ اگر ایک شخص کے الفاظ میں 99% کفر ہے اور 1% اس میں ایمان ثابت ہوتا ہے تو جی فتویٰ دینے والا ایمان کے ساتھ جائے گا. یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے اہل سنت حنفی بریلوی کا. تو لہٰذا جب میں یہ عبارت کوئی ایسی آئی اور میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ میں رکھوں گا کہ بھائی اس میں 99% کفر اور 1% اگر اس میں ایمان ثابت ہو رہا ہے قرآن و حدیث سے، تو آپ کے منہج والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ جائیں گے، فتویٰ دینے والا کفر کے ساتھ نہیں جائے گا. لہٰذا یہ جو عبارت میں آپ کے آگے آپ نے میرے آگے رکھی ہے تو قرآن و سنت سے اس کو میچ کریں گے. یہ طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے. باقی جو بھی آپ نے میرا ظاہر کفر ایمان ثابت کریں گے قرآن و حدیث سے کریں گے نا، بائبل سے تو کریں گے نہیں. نہیں، یہ آپ کا نہیں، انجینئر کا جو ہے میں بات ہو رہی ایک ہی بات ہے. میں مثال کے طور پہ کر رہا ہوں بات، ٹھیک ہو گیا. اب آ جائے شرائط. جی شرائط یہ ہوگی کہ اوپر میں بیٹھوں گا، آپ بیٹھیں گے، تیسرا بندہ اوپر کوئی نہیں ہوگا. آپ ماڈریٹر نہیں ہو، آپ تو خیر ہوسٹ ہیں، تو میں بھی ہوسٹ. جب آپ نے اپنی لائف آپ کی بات ہوگی نا تو پھر اس کا مطلب آپ کی لائف نہیں ہوگی. اب لائف ہوگی دوسری جہاں پہ مجھے بھی اتنے اختیارات ہوں جو آپ کے پاس اختیارات ہوں. محمد نہیں، احمد اس آپ کا کو ادھر لے کے آیا ایسا تھا، کریں گے نا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں، کریں سن گے لیں. نا، ایسا کریں گے کہ ہم براڈ کوئی بھی ایک بندہ دیکھ لیں گے جو کہ بھائی مسلمان ہو اور جو نہ میں ہمارا اپنی وہ. طرف سے طیب کی برات اناؤنس کرتا ہوں، میں ادھر آنے کو تیار ہوں، ٹھک ہے. میں اپنی طرف سے یار میں اپنی کرتا ہوں براڈ. نہیں آپ کی برائڈ کے اوپر کوئی نہیں آئے گا بھائی، نہیں کیونکہ نہیں، بھائی ایک کوئی بھی منٹ بندہ عثمان بھائی، عثمان بھی ایک منٹ، عثمان بھی ایک منٹ. پتہ کی بندہ اسی کریں گے نا جڑا بندہ تانوں بھی قابل قبول ہوئے سانوں بھی قابل قبول ہوئے. وہ نہیں مسئلہ، وہ ساڈا مسئلہ 1 منٹ چ حل ہو جائے گا. وہ نہیں گل ہے کوئی. نہیں. ہاں جی، وہ نہیں کوئی ایشو ہے، وہ اسی کر لیں گے. طے اسی فی الحال تسی جڑے اپنے دلائل دینے نے، جڑے تسی اعتراضات اٹھاؤ گے نا، انہاں دا جڑا تسی حکم شرعی بیان کرو گے نا، وہ تسی ساڈے جڑے ادلہ ساڈے شریعہ ہے نے نا، انہاں تو تسی بیان کرو گے. تے جڑے مرزا انجینئر دے جڑے اعتراضات نے ساڈے، تے او اسی کہڑے اصولاں دے تحت جڑا بھی وہ ثابت کرنے نے، وہ بھی بخاری سانوں دس مسلم دیو. صحائے ستہ. لیکن مرزا انجینئر تے کہندا ہے کہ میں اجماع نو بھی ماننا وا تے سارا کچھ ماننا وا. ویڈیو موجود ہے جی ساڈے کول. جماع اس جماع نو لیا جائے گا جیڑا اہل سنت بھی مانتے ہون، بریلوی بھی مانتے ہون، دیوبندی بھی مانتے ہون. صرف بریلویاں دا جماع ہے، جو او جماع بریلوی میں تے او بریلویاں جماع. دا نام ہی نہیں لیا. ہاں تے کیوں میں دس بریلویاں نا، دا میں نام ہی اپنے نہیں لیا. استاد دے الفاظ تانوں کوٹ کر رہا نا. میں بریلویاں دا نام سونیا نہیں لیا. میں تہاڈے نال سنو سنو نا، اہل سنت دی گل کیتی ہے نا. اجماع وہ چیز ہوندی ہے ابو حسن جی ہاں. صاحب جرتے امت دا اجماع ہوئے. اچھا، دیوبندیاں دا، بھابیاں دا، بریلویاں دا بریلویت دا اجماع جڑا وی اجماع جڑا نا، سن ہاں یہی گل، یہ بہت اچھا اجماع ہے نا. ڈسکشن ہوئے گی نا، وہ بعد چ دیکھاں گے نا کہ وہ جماع کیا نہیں جاتا نہیں وا یا تہاڈا اس چیز نو دوجے سارے اڑا کے رکھ دیندے نے، وہ تو بعد چ دیکھا جائے گا نا. نہیں، ایسی اگر ہون اجماع بھی نو طے لے لواں کران گے، گے. اجماع نو لے لواں گے، لے لیا نا. ہاں ہاں جی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہن وہ جس ٹائم تسی جماع دی کوئی رکھو گے وچ، پھر میں تانوں دساں گا کہ جی. ایسا جماع نو باقی امت بریلویت تو علاوہ مانتی ہے کہ نہیں مانتی. جو بھی مانتی ہوئی تو جماع ایکسیپٹ ہو جائے گا، جو نہ مانتی ہوئی تو اڑا دیاں گے نا. باقی امت تو مراد کی ہے، یعنی کہ شیعہ دی گل کردے پے. آصف بھائی یہ جو اجماع ہے نا، میری بات سنیے گا. انجینئر کا جو ہم نے ثابت کریں گے اعتراضات، وہ اس کی ویڈیو سے ثابت کریں گے، قرآن و حدیث سے نہیں ثابت کریں گے. انجینئر کی ویڈیو کے اندر جو یار فیضان تضادات ہیں صاحب، وہ لا کے پہلی سامنے بات یہ ہے رکھیں کہ گے. آپ کو یہ نہیں بھائی پتا کہ جب دو بندے اصول طے کر لے ہو نا، تو یہ ساری باتیں آپ آپس میں بیٹھ کے پہلے طے کر وہ لینی بھی تھی مجھے بلانے سے پہلے. جو ہے نا، یہ میرا دیکھیں نا بندہ فیضان بیچ بھائی. میں بول نہیں رہا اور آپ لوگ اصول سمجھا رہے ہیں، ان کو پہلے یہ کرنا وہ کرنا، او آپ لوگ بھائی آپس میں میں طے کر معاون لیں. اچھا ایک مناظر کوئی ہوں، منٹ، مسئلہ میں معاون ایک منٹ مناظر ہوں، میرا حق آپ بنتا ہے ایک کہ میں منٹ درمیان میں بول آپ سکتا کو ہوں. میں بیچ میں معاون مناظر ایک ہوں. منٹ کسی نے ٹھہر کے آپ کو بیچ میں کسی نے انوائٹ نہیں کیا کہ ایک منٹ آپ ٹھہر معاون جائیں بنے. ذرا، ٹھہر جائیں ذرا، ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا انکار
कोई करेगा ना, मिसाल उमर इज़म भाई कहते हैं कि नहीं जी मैं नहीं मानता ना, ये जो आप बात पेश कर रहे हैं मैं इसको नहीं मानता, तो हम वो मिर्जा इंजीनियर की वीडियो पेश कर देंगे। ये बात है, सिर्फ इतनी सी तो बात यही है। तो ठीक है, तो यही तो मैं इस चीज से भागा नहीं हूँ। अगर हाँ इंजीनियर की जी। वीडियो पेश करना आपके आगे दलील होगी, तो उसी वीडियो के आगे मैं वीडियो से रिबटल करना मेरी भी दलील होगी। एक्सेप्ट है ना? नहीं, एक बंदा एक जगह पे एक बात करे, दूसरी जगह पे दूसरी बात करे, आपने तो उसका suppose फैसला कौन एक- करेगा कि कौन सा हाँ, कॉल उसका फैसला राइट पब्लिक है? करेगी ना, करेंगे ना, फैसला मुनाज़िर पब्लिक करेगी ना। बताएगा कि जो आपने जवाब में वीडियो पेश की है या ना, तैयब साहब वो अपनी ब्रांड के मुनाज़िर ऊपर उसका बुला रद्द लेना। करेगा। तैयब साहब अपनी लाइव खोलो, क्यों आप तब से म्यूट बैठे हुए हैं, हालांकि मेरे साथ हैं, लेकिन इनको यही मसला है कि कभी वो म्यूट खोलेगा, कभी वो म्यूट खोलेगा। तैयब अपनी लाइव के नहीं, ऊपर अबू हसन को बुला के मुझे बुला लेना, मैं आ जाता हूँ। तो अबू हसन साहब ऐसे नहीं तय होते, कभी आपका कोई मुआवन उठ खड़ा होता है, कोई उठ खड़ा होता है, ऐसे नहीं तय होता भाई। मैं आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, तैयब की लाइव के ऊपर आओ, जब दिन करे मेरे से आगे असूल तय करो, शराइत तय करो, और अपने मुआवनों से पूछ लो क्या क्या रखना है, कोई नहीं मसला नहीं, नहीं। बात ये है कि तैयब- उन्होंने भी जो बात वो कर रहे हैं ना, उन्होंने भी कोई बात ऐसी अभी तक नहीं की कि जो मैंने ना की हो। असूल ही नहीं होता ना ऐसे बात करने का। आपके पास इल्म नहीं है, आपको डर है कि मेरे पास कम इल्म है। ऐसी नहीं बात है, असल में होता ही है ना फिर कि कभी फिर किसी जब के मैं ज़हन में आपसे कोई बात तय आ करने जाती है क्यों ना। किसी के 1-to-1 आपका मेरा मुनाजरा, टीम का तो मुनाजरा ही नहीं है कि मेरी पूरी टीम आपके पास बैठेगी जी या जी 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 आपकी पूरी टीम बैठेगी। जी जी। अब मसला ये है ना, सिर्फ एक बात ये क्लियर कर लें कि देखें कि जो अदिल्ला शरिया होते हैं ना, उसमें तो कोई बात भी ये नहीं तैयब सुन होती रहा है कि नहीं यार, सुन रहा? तैयब को म्यूट किया हुआ है, तैयब साहब सुन रहे हो कि नहीं? देखिए मेरी बात, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने इमाम बुखारी का फतवा पेश करता हूँ या किसी और इमाम का फतवा पेश करता हूँ, तो ये तो नहीं होगा कि इमाम बुखारी ने एक जगह पे फतवा कुछ दिया हो और दूसरी जगह पे फतवा कुछ दिया हो, तो वो अगर उसकी इमाम- बात जी जी। अगर मैं इमाम हसन भाई एक सुने। बात करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। देखें, अगर ये इमाम अहमद रजा बरेलवी की कोई ऐसी इबारत पेश कर रहे हैं ना, जी तो आप उसके बदले में, अगर उन्होंने देखें एक बात से रुजू कर लिया है, तो आप उनके सामने रख सकते हैं, ये देख लें भाई। अगर उन्होंने ये नहीं, बात की मैं- थी तो मैं उन्होंने उनकी तो बात कर ली नहीं कर थी, रहा। या उन्होंने रुजू कर, नहीं मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, एक जर्नल एक बंदे की बात तैयब कर साहब रहा हूं। इन्होंने बोला है कि हम आपके आगे एतराज के आगे मिसाल के तौर पर एक वीडियो रख देंगे कि यार इंजीनियर ने बोला, जैसे मैं बता देता हूँ ना कि कादियानियों के क़यामत वाले दिन अज़ाए वजू जो चमकते होंगे, वो एक क्लिप जो है वो आगे रख देंगे। मैंने उनको ये बोला कि अगर आप मेरे आगे ये रखेंगे तो मैं उसको रिबटल करने के तौर पे जिस बंदे का वो वीडियो क्लिप आप दिखा रहे हैं, मैं उसी का जवाब आपके आगे रख दूंगा। मेरा मसला क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैं वही कह रहा था कि अगर देखें इधर किसी भी बंदे की बात चल रही है ना, तो एक बात पे अगर उससे मिस्टेक हो जाती है तो दूसरी वीडियो या वो एक पूरी वीडियो, अगर ये कोई एक एतराज उठाते हैं ना किसी किताब से, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई पिछले सफ़े से पढ़नी शुरू कर, उसमें आपको बात की समझ आ जाएगी, तुम एक इबारत लेके तो फतवा लगा रहे हो। ये बात तो होनी चाहिए अबू हसन भाई। ये तैयब साहब आप सारे ऐसे तय कर असल लें। में मेरे एयरपोर्ट पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। अबू हसन आसफ साहब एक मिनट, मेरे जी, जी। 4:25 पे फ्लाइट है, मैं एयरपोर्ट मुझसे अभी आधा घंटा दूर है, मैंने निकलना है। ये चलें- बाकी चलें, शर्तें तैयब आप- तय कर ले। आप नहीं तब चलें, तक- नहीं नहीं मैं तय नहीं करूंगा, आप फ्री होके आएंगे तो फिर आप ही तय करेंगे। आप हाँ, कब तक फ्री होते हैं, कब तक फ्री होते हैं आप? मैं फ्री हूँ, मेरा कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ- मेरे मेहमान आज मैं- पाकिस्तान से आ रहे हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ और कोई मसला नहीं, फिर भी मुझे मुनाजरे के लिए 1 घंटा निकालना मेरे लिए कोई इतना बड़ा, इट्स नॉट अ टीडियस जॉब, जी ठीक है। और दूसरा ये होगा कि मुनाजरा जो भी न्यूट्रल लाइव होगी मेरी तरफ से, तैयब साहब की लाइव है, नहीं है तो फिर भी आप कुछ चूज कर लें, और आपके किसी बंदों की लाइव नहीं होगी। आपकी लाइव उस सूरत में होनी है जिस सूरत में मोहम्मद अहमद मेरे साथ रब्ता करेगा। और दूसरी बात एक होगी है, और मोहम्मद अहमद की एक मुझे वो चाहिए डिस्क्लेमर, और जो वो कैमरे के साथ आपने बात की थी ना, वो यानी उधर जाने लगा हूँ। साहब, मोहम्मद अहमद साहब इधर पहले डिस्क्लेमर दें कि मैं आज के बाद उमर ये मुनाजरा जीते या हारे, मैं अब इस मुनाजरे से बाहर हूँ, मैं उसको किसी लाइव के ऊपर जाके डिबेट करने का या टोंट करने का मजाज नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अब मामला आ गया अबू हसन यानी आसफ साहब के स्पोर्ट। और 1-to-1 होना है जी, यहाँ पे कैमरे खुलेंगे, मैं भी अपनी शक्ल सामने रख के, किताबें सामने रख के हवाले दिखाऊंगा, आपने भी सामने रखना है, हवाले दिखाना है, शक्ल हमारी भी आप सामने होगी, आपकी पब्लिक देखे कि 2 बंदे गुफ्तगू जो कर रहे हैं उनमें कितना पानी है, अपने इल्म का कितना दाम खाम है जी, ठीक हो गया। मेरी तरफ से सिर्फ यही शिकायत है, इतनी बड़ी और कोई नहीं है।
बाकी आप तय करें, अगर आप कबूल होगी तो मुझे नहीं, जब बोलेगा उमर भाई वो मैं आ कह रहे जाऊंगा। थे, मेरी ये पहले बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं कैमरे का साथ नहीं आ सकता। क्यों? तो वो डर बंदा किस- दे रहे क्यों थे, नहीं आ सकता? वो कह रहे थे कि एक फिजान आएगा या उस्मान आएगा या मुफ्ती साहब। मैंने कहा भाई उन तीनों नहीं का नहीं मुझे नहीं, बोला नहीं गया। अब अबू हसन साहब से मेरी बात है ना। अब ऐसा तो नहीं ना कि ये बंदा भी भाग जाए बोले तीसरा आ जाएगा, मैं कैमरे के साथ नहीं आ सकता। डर किस बात का भाई? देखें, इसमें जो है वो हर बंदे की पर्सनल कोई ना कोई अपनी मजबूरी होती है। जो बंदा आ सकता है ना, तो वो बंदा, जैसे कि फैजान भाई जो है वो आ सकते हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि उनके पास नेट का और मोबाइल का इशू है। वो उनका आवाज़ जो है वो सही नहीं आती, डिले हो जाती है आवाज़, वो नहीं गुफ्तगू कर सकते। मुफ्ती साहब है, मुफ्ती साहब भी अपने चेहरे के साथ आ सकते हैं, वो भी तैयार हैं। अगर आपने मुनादरा करना, शरायत यही होंगी, मौजू मुनादरा भी यही होगा, सारा कुछ यही होगा। अबू हसन साहब मुझे तो कतन भी जी। इसका शौक नहीं था और ना मेरा टीचर कभी इजाजत देता था, लेकिन मैं तो ये आप लोगों के असरार के ऊपर आपके पास आया हूँ और मैं जी, जी, रेडी जी। हूँ उसके ऊपर। मोहम्मद अहमद भागा है, मनाजे से पहले मोहम्मद अहमद का डिस्क्लेमर चाहिए मुझे, वीडियो में या ऑडियो में, कि मैं आपके आज पास से कोई उनकी ऑडियो ऐसी है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि मैं खुद मुनाजरा करूंगा? आपके पास है ऑडियो? जी तैयब साहब की लाइव से निकाल देंगे आपको। तैयब साहब दे देना उनको काट के यार, डाउनलोड करके वो क्लिप उस दिन वाला। हाँ हाँ ठीक है, नहीं, ये अगर भी है। बात हुई थी कि दो बंदे, उमर ने ये भी बात की थी कि मैं बैठूंगा और अहमद आप बैठने, कोई तीसरा बंदा नहीं होगा। हाँ ये भी बात हुई थी। अगर इन बातों से मैं मुकरूं और मेरा ये जवाब वो मोहम्मद अहमद आके बोले कि गलत बयानी कर रहा है, तो भाई मैं आप हर हाल में हाजिर उसका हूँ, ठीक है? उसका हाल ये है कि आप ना जो मोहम्मद अहमद साहब ने वहां पे आपसे बात की है ना, फाइनल बात जो उनकी हुई है, या आपके मैसेज के अंदर को फाइनल बात उनके साथ हुई है ना, क्योंकि देखिए एक बात स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्ट होते होते वो कई रुख इख्तियार करती है। जैसे अभी ये चौधरी तैयब साहब आए हैं, तो पहले हमारी तय हुआ कि जी कौन बात करेगा, मैंने कहा जी उस्मान भाई बात करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं जी जो है ना वो मोहम्मद अहमद ने आपका नाम लिया था, मैंने कहा ठीक है मैं बात करूंगा। फिर इन्होंने कहा नहीं जी कैमरा ऑन करेंगे, फिर मैंने कहा ठीक है जी, अगर कैमरा ऑन करने की शर्त है तो फिर फैजान भाई बात कर लेंगे। तो यह है कि जब बंदे की फाइनल गुफ्तगू होती है ना, तो उसी को फाइनल समझा जाता है, लेकिन जब अंडर नहीं, प्रोसेस अबू हो ना हसन कोई भाई चीज देखिए, है, उसको फाइनल नहीं अगर समझा उधर जाता। बात ना हुई होती अबू हसन भाई, अगर उधर ये बात ना हुई होती अहमद वाली, तो मैं कभी भी, देखे मैं कल भी आया हूं ना आपकी लाइव पे, जी मैं जी। कभी भी ये ना कहता कि अहमद भाई आए और उससे उनसे मैं बात करूंगा। आज सुबह भी आप आए हैं तो मैंने यही बात की है ना कि यार अहमद भाई पता नहीं कब ऑनलाइन होंगे, मैं उनसे बात करनी है। इसलिए मुझे भी यही था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने अपना ही नाम लिया था, मुझे भी यही जी। था, उन्होंने करना है मुनाजरा। और जी। बाखुदा वो कह के भी तैयब साहब यही कहते कि मैं करूंगा अबू हसन की ब्रांड के ऊपर आओ, उसको ये लगता था कि मैं आऊंगा नहीं, तो मैंने नहीं, उसको नहीं, बोला, उसने एक वैसे बार जो बोला बात कि नहीं, मुझे फिर की दूसरी थी बार ना अच्छा उसने, ठीक है मैं आऊंगा भाई। उसी टाइम जैसे ही आपकी बरात से वो आया है ना, उसी टाइम वो यहाँ पे आया और उसने आते साथ ही ये कहा है कि मैंने आपका नाम लिया। आते ही यहाँ पे सारे दोस्त सुनने वाले थे और उसने आके यही कहा है कि मैंने उससे कहा है कि यहाँ उस्मान भाई से तुम्हारी डिबेट होगी, तो या नहीं उस्मान भाई का नाम अगर उसने लिया हो उस्मान भाई का तो नाम मैं ही नहीं लिया इधर भाई। सुन ले, आपकी लाइव प्री रिकॉर्डिंग होती है, मैं इधर बता, अगर उस्मान का, फैजान का, एक्स वाइड किसी का नाम लिया हो, मैं वीडियो क्लिप बना के बोलूंगा कि मेरा मैं नाम भी अबू नहीं लिया हसन की अब आपका मेरा भी नाम नाम लिया। नहीं, उसने बोला कि मैं लड़ूंगा, वो नहीं, वो आपकी लाइव के ऊपर आएगा। अच्छा चलिए हाँ, ठीक ये- है, आप वो ऑडियो दिखा दे तो कोई बात नहीं ऐसी है। तैयब वैसे साहब तो ये है कि मेहरबानी थोड़ा क्लिप डाउनलोड करके ना मेरा भाई, अच्छा, इनको जरा इसमें एक भेज और देना। चीज है कि देखें, मिसाल के तौर के ऊपर चौधरी तैयब साहब आते हैं यहाँ पे, वो आके कहते हैं जी हमने आपके साथ मुनाजरा करना है, तो उसमें आप मुनाजर किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। वैसे इसमें तो कोई इतनी बड़ी ऐसा बात नहीं है। वैसे ऐसा तो नहीं होता ना भाई आसिफ साहब, ऐसा नहीं होता, बंदा चले यार, बकायदा अबू हसन नॉमिनेट भाई करके देखिए, गया है अभी दोनों तक भी ना, हम नहीं, तो उमर भाई, हम अभी तो तक उसको भी छोड़ के आपकी बंदा तरफ ही नहीं आने को चूज तैयार होगा। हो गए हैं, और क्या चाहिए आपको, हम तो आपसे भी बात उमर करने को भाई, तैयार। जी उमर भाई अभी तक भी एक बंदा चूज नहीं हो रहा, क्योंकि अबू हसन साहब कह रहे हैं कि मैं कैमरे के साथ नहीं आ सकता, और तो आप फिर कह रहे तैयब हैं कि साहब- मेरा इन दोनों से। तैयब साहब देखें, मैं ये इमाम स्टूडेंट वाला जो नीचे BR भाई बैठे हुए, क्या उस्मान नाम है इसका, बाखुदा ये बताना, वो जिस दिन आपके मेरी लाइव के ऊपर आपने इनके साथ गर्मा शर्मी हुई है सारी, वो जो आके हल्ला गुल्ला करके गए, उससे पहले मैं इस बंदे को कभी जानता था? मुझे यार नहीं पता, नहीं मेरे मैं नहीं जानता, जानता। इनसे भी पूछने नहीं मैं जानता बात इनको। ये है यार, मौला अली रजी तआला अन्हु को जो
कि जो सुने- गुस्ताखी कर रहे थे उस पर बात हुई थी। उस्मान साहब आप यार, मेरी वो लाइव तो के ऊपर आए टॉपिक था थे ना। उस चलिए दिन। वो पुरानी बात जो है ना उसको छोड़ दें, अच्छा पुरानी ये बात को फैजान छोड़ साहब दें। है, ये फैजान भट्ट है, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं इसको भी आज तक नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मैं नहीं, ठीक माशाल्लाह हो, ठीक हो। इनको जरूर जानता हूँ आसिफ साहब को। और ये जो बोलते हैं ना मैं अपनी शक्ल से सामने नहीं आ सकता हूँ, तो मुझे हैरत होती है कि दूसरों की शक्लें माशाल्लाह ये लगाते हैं अपने लाइवों के ऊपर, अपनी से नहीं आ सकते सामने। अल्लाह की शान है जी। यार मेरी देखिए लगी जी, हुई है जो तस्वीर, आप बंदा वीडियो ना, कैमरे मैं की बताता शर्त हूँ। बता देना। मैं बताता हूँ, असल में बात यह है कि जब कोई बंदा शादीयत करता है, वैसे तो हमने आज तक कभी किसी को नहीं कहा, अब हमारे पास हजारों कोई बंदे आते मसला हैं। नहीं है, आपकी नजर में पूरे सारे काफिर हैं जी, शातमी है तो छोटा लफ्ज हो जाता है, ठीक है, आप नहीं, करें नहीं, जो आप आपकी करें। देखें, आपके आप साथ मैं खुद- सारे असूल रख दिए, शरायत रख दी हैं आपके आगे, कबूल हो भाई बता देना, मैं आज नहीं भी नहीं, रेडी हूँ। कबूल है, ना कबूल है, हो कबूल तो है, फिर- लेकिन मसला सिर्फ एक जगह पे मसला हमारा ये आ रहा है कि देखें मिर्जा, मैं ये मिसाल के तौर पे बयान कर रहा हूँ, इसको आप गलत रंग ना दीजिएगा। जी देखिए मिर्जा कादियानी है ना, उसकी इबारतों के अंदर आपको इतने तनाकुसात आपको मिलते हैं ना कि बंदा पागल हो जाता है। इतने तजादात उसकी बातों में आपको मिलते हैं, उसकी इबारतों के अंदर, कि कोई बंदा कोई भी नतीजा उससे निकाल सकता है। इसी तरह से मिर्जा इंजीनियर साहब जो हैं वो एक जगह पे कुछ कहते हैं, दूसरी तो जगह सर पे कुछ यही कहते अब्बू हैं। सर साहब यही तो हमारा मसला है ना, हम लोग, मैं बरेलवी मसल से क्यों बाहर आया हूँ, हम ये समझते हैं कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जो है ना ये अब छोटा रह गया है, बरेलवियत के माशाल्लाह कुछ जो लोग हैं ना उससे आगे चले गए हुए हैं। हमारा तो ये कीदा है, हम आपसे कब देखिए कीते ना, पर आप इसी कीते के जो लेके हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हुए हैं। हम ये नहीं, समझते अभी हैं फिलहाल- कि ला इलाहा आपने- इल्लल्लाह सुन ले, चिश्ती रसूल अल्लाह वाला भी उतना ही बड़ा दज्जाल है जितना गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, तो इसीलिए तो हम आपसे चले बात करने के लिए तैयार हैं। वो तो ऐसा, चले आपने चिश्ती रसूलुल्लाह भी राफजियों को कादियानियों से बड़ा और एक मिनट मिर्जा उस्मान इंजीनियर को भाई, उससे भी बड़ा तस्लीम तैयब करते हैं साहब और ये मानते मसला है कि हैं। किसी उस्मान लाइव भाई, कवर एक इनसे मिनट गुफ्तगू नहीं हो सकती। उस्मान भाई, एक मिनट। मौका दे खिदमत का। उस्मान भाई एक मिनट जरा ठहर जाए। अच्छा, आपको अब ये शर्त मंजूर है कि बगैर कैमरे के आप मेरे साथ नहीं, बैठेंगे? आप कैमरे के ये बगैर मंजूर है कैसे हो आपको? सकता है ना, पता तो लगे पब्लिक को मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कौन है, मुझे पता लगे, शर्तें बिल्कुल सामने आमने सामने एक दूसरे को भाई, फेस टू फेस आप बैठेंगे। मेरी बात आपको- सुने ना, मेरी बात आपको अगर सुने। इस चीज का डर है तो फिर आप मुझे इसका मतलब मुझे खुद मुझे आप एक चीज डरपोक हैं बताएं, और खुद आप दो मेरी नंबरी बात कर रहे सुने हैं जी। मेरी बात सुने, हर बंदा जो है ना वो डरपोक होता है। मिर्जा इंजीनियर डरपोक नहीं है, मिर्जा इंजीनियर डरपोक नहीं है, वो निकलता है अपनी आप- एकेडमी से बाहर, इंजीनियर- वो तो इंजीनियर नमाज डरपोक पढ़ने है के लिए भी बाहर नहीं ना। निकलता, वो तो इंजीनियर नमाज डरपोक पढ़ने है के ना लिए आपकी भी बात आज में। तक जुम्मा मैं- पढ़ने के लिए भी कभी बाहर नहीं गया। मैं अच्छा, सुने इंजीनियर- मेरी बात, सुने मेरी बात, जी, सुने मेरी बात। देखें, ये तो सिर्फ एक भागने वाली बात है ना कि आप किसी बंदे को जबरदस्ती कहें, एक बंदा अपनी नहीं आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहता तो आप कहते हैं कि नहीं जी तू अपना जो है वो दिखा, चेहरा दिखा, अपना जबरदस्ती दिखा। यहाँ पे आज तक कितने मुनाजरे हुए हैं, ज़िया रसूल भाई का मुनाजरे हुए हैं, उसके बाद जनाब अपना आमन नज़ीर भाई के मुनाजरे हुए हैं, कई लोगों के मुनाजरे हुए हैं। कभी किसी ने ये शर्त रखी है कि आप अपना चेहरा दिखाएं? ये तो बिल्कुल एक फजूल से एक एतराज है, यानी कि जिसकी बेसलेस कह सकते हैं आप इसको, बेसलेस एतराज है आपका। पहली बात यह है कि आसिफ साहब ये आपको लगता है, हमने जितने भी आज तक मुनाजरे देखे हैं ना, ये टिकटॉक तो जी। फितना आज की दुनिया में पैदा हुआ है ना, हमने आज से पहले जी। जितने भी मुनाजरे देखे हैं वो फेस टू फेस बैठ के सामने होते हैं। या तो आप सऊदी आ जाए या मुझे तो भाई कभी है तो हम रख लेते हैं मुनाजरा, अगर आपको ये भी डर है मैं सामने भाई, में बैठने को बात तैयार हूं, ऐसे कोई है, मसला नहीं। बात ऐसे है, वो तो जब आप आएंगे तब की बात है ना। उस्मान साहब रुक जाए, उस्मान साहब मेहरबानी यार, इसको क्या क्या कीड़ा यार, है? एक मिनट मेरी बात सुने। वैसे बताया है मैंने। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब ये है कि इस तरह से अब तो सुन फिर ले, बात डेड लॉक का TikTok के शिकार हो ऊपर जाएगी ना। ये डेड लॉक के ऊपर क्यों शिकार हो रही है ना, मैंने कोई आपसे कोई ऐसी चीज तो मांग नहीं ली कि जो आपको लगे कि इससे मतलब कोई भाई सिर्फ देखें, face ये to face पर्सनल, सामने ये पर्सनल देखें, पर्चा मैंने leak आपसे, हो गया आपको सारा। याद होगा, अब आपने बात आपको करी। याद होगा कि मैंने आपसे एक दफा मांगा था कि आप अपना आईडी कार्ड मुझे दें और आप मुझे अपने आईडी कार्ड की फोटो कॉपी दें या अपने आईडी कार्ड की फोटो दें। आपने दी थी मुझे? आपने दी थी मुझे, मैं इधर चैलेंज करता हूँ तैयब को, अभी मैं अपने आईडी कार्ड की कॉपी सेंड करता हूँ, आप तैयब को सेंड कर दो। है मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आपने दी मैं थी आपसे मुझे, आईडी क्यों कार्ड नहीं नहीं दी मांग रहा थी? हूँ, मतलब आप कितनी नहीं, अजीब सी आपने बात क्यों, कर रहे हैं भाई। सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, आपने क्यों नहीं दी थी? क्या वजह थी? आपने हाथ के ऊपर रख लिया था। मैं उस दिन आपको बोला कि हम आपसे उस दिन बोला कि शेर मारेंगे आपको। आप एक क्या बात चीज़? पे उस दिन आपको जिसने अर्श ने भी बोला, एक अब्बे का तो खोल कैमरा, उस दिन आपने क्यों नहीं खोला?
भाई कैमरा ना खोलने से कोई बंदा एक कब्बेगा नहीं रहता, ये तो अजीब आपकी दलील है। तो फिर आपकी क्या दलील है, ऐसी क्या परेशानी है? आपके बड़े सारे कैमरे के साथ बैठ रहे हैं और आप कैमरे के बगैर क्यों बैठना चाह रहे भाई हैं? मसला बात क्या ऐसे है ना कि ये आप जो डिमांड कर रहे हैं ना, ये तो ये आप डिमांड भाग रहे हैं मुनाजरे आपकी नहीं, मुनाजरे में आपके चेहरे ने बिल्कुल आप मुनाजरा भाग नहीं रहे हैं। करना, आपके जुबान ने मुनाजरा करना है, आपके चेहरे ने मुनाजरा थोड़ी करना है। बिल्कुल आप मुनाजरे से भाग रहे हैं। अब आपकी भाई मर्जी है। आप ठीक अपने है। ही किसी साथी से फैसला ले लें सुन भाई, ले, मैं अपने ही किसी साथी से मेरा फैसला ले साथी- लें मैं अकेला आया हूँ भाई, कि- साथी क्या अकेला अपने ही आपसे किसी मुनाजरा साथी करना, से फैसला टीम का ले तो लें मुनाजरा है ही नहीं। कि सुन ले, मुनाजरा जो है वो देखें मान साहब एक आप भी सेकंड। अपनी वीडियो ऑन कर लें आप भी। यार तैयब साहब, इसीलिए यहाँ पे आने का ये प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे बीच में बात नहीं करने देते ये लोग। यार आखिरी बात ये है, देखें अपने सुने अब आसिफ साहब, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, ये मैं गाड़ी स्टार्ट जी, करनी जी। हूँ, बार बार नहीं जी, बोल जी। पाऊंगा। तैयब बैठा रहेगा, उससे गुफ्तगू कर ले, मैं जी। दोबारा आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। अब हमारी जो मैं बात आपसे- इस वक्त डेड लॉक का मैं शिकार हुई है ना, वो आपसे सिर्फ बोल रहा और हूँ, सिर्फ सुने, अपने मसलक की खातर, अपने दीन की खातर बंदा जान कुर्बान कर देता है। आप फेस टू फेस बैठने को तैयार नहीं, नहीं है। जब जब आप में ईमान एक- इतना आ जाए ना, बात सुनो। आप मुझे तैयब जब हम- बोल देना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? जब हम वो मौका आएगा इजाजत ना, है तैयब साहब मुझे, एक मिनट आप बाकी बातें तैयब से करें, कोई मसला नहीं, वो जी, समझे कि मेरा ही ऑथराइज्ड बंदा है। देखिए एक बात सिर्फ सुनते जाएं, एक बात सुनते जाएं। देखिए मेरी बात सुने, जब इंशाअल्लाह ताला इस्लाम के लिए जब मौका आएगा ना, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यही जो नारे लगाने वाले हैं ना, लब्बैक या रसूलल्लाह, ठीक है, ताजदार खत्म रबो जिंदाबाद, यही लोग बाहर आते हैं और यही लोग अपनी जानों के नजराने पेश करते नहीं, हैं। वो नहीं देते, हमको ये वो बताने की मासूम- जरूरत नहीं है। वो बात मासूम सुनिए। लोगों को वर्गलाते हैं, खुद जो है वो छुप के बैठते हैं कि मैं कैमरे के आगे नहीं आ सकता। वो भाई इस तरह अलामा करते होते हैं। खादिम अलामा वो खादिम दूसरों को सैन मिसयूज रिजवी करते हैं, साहब, वो हमें पता है उसका, अलामा ठीक है? आप अलामा उस तरफ ना खादिम जाएं। सैन अलामा खादिम सैन रिजवी साहब तो जो थे तो वो फ्रंट पे होते थे, सबसे आगे होते थे वो। जी, मैं अलामा वही साहब बता रहा हूं सैन कि रिजवी साहब भी आप सबसे आगे खादिम होते सैन हैं। रिजवी साहब की सुन्नत पे अमल करें ना, निकले बाहर, क्यों नहीं निकल रहे? भाई जब वो मौका आएगा तो हम निकलते हैं ना भाई, कौन निकलता है वहाँ पे? कोई जब नहीं, बात सुने इंडिया ना, की फौज जब बॉर्डर बात क्रॉस सुने कर ना। जाएगी, फिर आपकी नजर में मौका बात आएगा सुने वो। बात सुने ना, जब वो मौका आता है तो हम ही लोग बाहर निकलते हैं, और कौन निकलता है बाहर? यानी कि कोई आसमान से बंदे नाज़िल होते हैं? आप नहीं ना निकलते ना, नहीं निकलते थे। भाई आपको क्या वो पता? हम ला हौला वला जैसे कुव्वता हम इल्ला जैसे बिल्लाह। लोग यार नहीं है ना, कैसे ऐसा बंदे हैं बता यार करें, ठीक है? यार ठीक ये है, तो आप तैयब साहब इजाजत है। तोहमत लगा, ये तो आप तोहमत लगा रहे हैं ना आप। अब हसन साहब, ये आपको लग रहा है आसिफ साहब की तोहमत है, ठीक है? तो अब आपकी बहरहाल मर्जी हो तो ये तैयब से अब बाकी आप शर्त तय कर लो। भाई अबू जी, जी। हसन भाई देखें, जी जी अभी बात सिर्फ इतनी तैयब है मैं जा कैमरे रहा की। हूँ, मैं बस रास्ते में हूँ, ठीक है? मेरा अभी बातों बातों मुखालफा आ गया तो मसला हो जाएगा। चले अल्लाह आप हाफिज। जब दोबारा फ्री होंगे ना, तब शरायत दोबारा तय कर लीजिएगा। उस्मान साहब, आपके साथ तो जिंदगी में कभी नहीं बना सकता ना, ये मुनाजरे के लिए सिर्फ ये दो ही तो बंदे यार हैं। मैंने मुझे हरा देना यार। आप उस्मान भाई सब्र करना, यार, खुदा वास्ते सब्र उस्मान करना साहब, है। ऐसे क्या मुनाजरा करना? चलो फिर हरा देना चलो यार। कोई बात नहीं, कोई बात अल्लाह नहीं। हाफिज। आप अच्छा मुझे मेरी फिर बात हरा सुने, देना चलें आप अब तशरीफ ले जाएं, तैयब भाई से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तैयब भाई उस्मान ये भाई, देखें ना, उस्मान अब भाई, जब ये- आपसे हमारी बात नहीं है यार, आपका अब मैं नहीं ना बोल रहा, मुझे पता उन दोनों ने मुनाजरा करना, वो जाने और उनका काम जाने। तो यार आपका भी हक बनता है कि अबू हसन भाई पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको बात करने दें। अच्छा तैयब भाई, अब ये डेड लॉक जानबूझ के ये खुद इन्होंने क्रिएट किया है कि भाई एक बंदा है, उसको पता है कि यार मेरे मामलात क्या हैं और मेरे लिए सिक्योरिटी रीजन है, मैं अपना कैमरा नहीं ऑन कर सकता। एक बंदे को पता है ना, अपने मामलात का पता है, सारी चीजों का पता है। अब सिर्फ मुनाजरे से, मुनाजरा तो जुबान से होना है, मुनाजरा जो है वो हम भी इनसे नहीं तकाजा करते कि ये भी मुनाजरे के दौरान ये भी ना कैमरा ऑन करे, हम नहीं इनसे तकाजा करते। जी, तो ये है कि ये तो मुनाजरा ना करने वाली बात हुई ना। अब यार ये उनका मसला है, क्योंकि उस दिन भी जब ये बात हुई थी ना अहमद साहब से, तो उस दिन भी यही बात हुई थी कि इसने, उमर ने यही बोला था कि बात होगी तो कैमरा खोल के होगी। तो या फिर अहमद भाई को बोल लें, अगर वो कैमरा ऑन कर सकते हैं तो वो मुनाजरा कर लें। भाई अहमद भाई ने ना उसी टाइम यहाँ पे, जब आप की बरात से वो आया है ना, उसी टाइम वो यहाँ पे आया और आते ही उसने कहा कि जी मैंने उनसे ये बात की है कि अबू हसन के साथ मैंने आपका मुनाजरा करवाना है। अब ये आप बरात की रिकॉर्डिंग निकालें, वो रिकॉर्डिंग निकाल के उसका क्लिप मुझे सेंड करें, ये बात उन्होंने खुद मुझे आके बताई है।
वल्लाह लजी मुझे खुद अब बताइए। देखे ना अबू हसन भाई, वल्लाह आलम, मैं अल्लाह को जान देनी है ना, मैं उमर की कब्र में जाना है ना आपने मेरी कब्र में आना। मैं अल्लाह की कसम, मुझे भी यही था कि अहमद भाई ने खुद मुनाजरा करना है, इसलिए पता मैं कल भी आई हूँ आपकी बात पे। अगर आपने मुनाजरा करना होता तो मैं सीधी आपसे बात कर लेता। हमें यही था, शायद हमें सुनने में कोई मसला आ गया, या उन्हें बोलने में उन्होंने आपका नाम लेना था, या बोलने में कभी कभी अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं जिसकी वजह से शायद अगला बंदा समझ नहीं सकता। शायद उनके दिल में आपका ही नाम होगा, लेकिन उधर उन्होंने आपकी बात नहीं की थी। हाँ, आपकी बराड़ की बात जरूर हुई थी कि अबू हसन की बराड़ पे आ जाना। स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। चले बहरहाल ये है कि मेरा अब ये है कि आप इससे बात कर लें, इसको कहें कि ये जो इसने एक बीच में शर्त रखी है ना कैमरा ऑन करने वाली, उस शर्त को जो है ना वो ये विड्रॉ कर लें, और आज रात को जो है वो 12 बजे 11 बजे 1 बजे जिस टाइम भी ये कहते हैं उस टाइम पे इंशाल्लाह ताला हम अबू अपना हसन मामला भाई, शुरू कर शटरंग लेंगे। का काम कर दो या शटरंग लवा रहे हो किधरे? यार है ना थल्ले फर्श खराब हो गया जो आए दिन भाई मेरा फर्श नहीं वो नवी अकेडमी बनाते पे ते इस तो बाद अगली अच्छा अच्छा, चलो सही है। फर्श खराब होया है तो फर्श ठीक कर देते। हाँ तो यार हुणे कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਮਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ नहीं, ਅਬੂ ये ਹਸਨ तो ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ उन्होंने ਮਸਲਾ कन्विंस करना है ना। ये उमर ये तो बहुत बड़ा मुनाजरा है, वो खत्म कर देगा इस शर्त, कोई मसला नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं। बस ठीक हो गया जो इस गल ते तू अपना अपना हट जांदे ने ते इंशाल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੈਸੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। बाकी अगर उन्होंने डिमांड है आज आप बिल्कुल सर जी, आज आपने देखा होगा आज जो हमारे के नवीद मोहम्मद नवीद, ठीक है, वो अपने में से शायद किलर भाई वहाँ पे गए होंगे, तो उन्होंने 6-7 के समझ लें वो मिलाद के मुनकर थे, तो अकेले में उनसे इतनी देर बातें करते रहे, उन्होंने इतने सवाल किए ना, उन्होंने एक एक करके जवाब दिए। माशाल्लाह बहुत इल्म रखने वाला बंदा है वो यार, कसम से मैं उसके दीवाना हो गया हूँ, ठीक है। तो वो भी इतनी लोगों में बैठ के इतने बड़े आलम, उनके भी आलम थे और नवीद साहब भी बहुत बड़े आलम हैं, उन्होंने नहीं फेस ऑन किया, उन्होंने A to Z सब कुछ बताया। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं शो किया कि हाँ मैं कैमरे के सामने फलां किताब रख रहा हूँ, ये किताब देखो, ये भी नहीं शो किया, क्योंकि आगे वाले जानने वाले थे, हवाले जानते थे, वो जानते थे कि कौन सी, जब नवीद भाई बताते थे कि बुखारी की फलां हदीस है, तो वो भी जानते थे बुखारी की फलां हदीस ऐसे है, क्योंकि जब आगे वाले जानने वाला हो तो फिर उसको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यार अब ये तो मसला उमर का है और अबू हसन का, मैं किसी की गारंटी तो नहीं ले सकता। ये बात है, फेसबुक से जो है ना वो मुनाज़रे नहीं किए जाते, मुनाज़रे तो कुरान से किए जाएंगे, हदीस से किए जाएंगे, ठीक है, आपके चेहरे से नहीं किया जाएगा। करीबी हो ना, करीबी यानी कि शहर दूसरा हो, मुल्क एक हो, तो बंदा वहां पे पहुंच सकता है। ये अब टिकटॉक है, कोई किसी मुल्क में बैठा, कोई दुबई में, कोई सऊदीया में, कोई जर्मनी में, तो यहाँ पे तो फिर ऐसे गुफ्तगू हो सकती है। तो नहीं कैमरा तो खुल सकता है ना इधर, टिकटॉक पे बैठ कैमरा के खुल सकता है, लेकिन उसकी शर्त जरूरी नहीं है ना। नहीं लेकिन आपने ये जो बात की है एक दूसरे से मिलना भी तो जरूरी नहीं है। अगर मुनाजरा टिकटॉक पे हो सकता है तो टिकटॉक पे कैमरा भी ऑन हो सकता है। नहीं, जब मुकातबा फिक्र का आपस में कोई इख्तलाफ हो जाए तो वो आपस में शर्त ये रखें कि हमने बैठ के ही करना है, तो शर्त तय हो आपस में, वो माने तो फिर है ना। इधर शर्त मानी नहीं जा रही, एक कह रहा है कि मैंने नहीं करना ऐसे, एक कह रहा है भाई आप ऐसे कर लो। जी तो मैं तो उनसे भी दरखास्त करूंगा और अब्दुल हसन भाई से भी दरखास्त करूंगा कि अगर आप आ जाएंगे कैमरे के साथ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और यहाँ अगर आप नहीं आ सकते तो फिर अहमद भाई से बोल मुंह से कुछ जीतना हो, मुंह से कुछ हार हो, मुंह से कुछ दिखाने से कुछ जीत हो यार, तू ज्यादा इल्म रखने वाला है, तू हक पे, तेरे मुंह पे माशाल्लाह नूर है, इससे तो बात नहीं बनती। ये तो शर्त ही ऐसी है, जैसे वो बनी इसराइल के पास वो मूसा इस्लाम वही लाते थे तो वो आगे से ऐसे उल्टे सवाल करते थे। ये कौन सा सवाल हुआ कि तुम फेस दिखा, इस वक्त ना इनसे सिर्फ हम गुजारिश कर रहे हैं, जूम वाले भाई, इस वक्त इनसे हम सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर नज़रसानी करें
अगर आपने डिबेट उसने मुअज़्ज़म ने करनी है ना, तो वो ये शर्त विड्रॉ करे, ताकि हम आज रात को इसके ऊपर जो है वो पैरवी करें। जो भी हमारा मुनाजरा होना है, डिबेट होनी है, तो उसको आगे रखिए, सारी दुनिया देख लेगी। और बात तो यहाँ पे दो शख्सियात के ऊपर होनी है ना, मेरे पे तो नहीं होनी, ना उमरिज़म के ऊपर होनी है। बात तो यहाँ पे एक इंजीनियर साहब होंगे और एक आला हज़रत होंगे। आला हज़रत के ऊपर इतराज़ात उन्होंने करने हैं और दलाइल देनी है, और हमने इतराज़ात इंजीनियर साहब के ऊपर करने हैं और दलाइल देनी है। यहाँ पे मेरा चेहरा दिखाने से वो ना तो जो है वो दलाइल बदल जाने हैं, और ना वो फतवा जो है वो जो भी फतवा वो लगाएंगे या जो भी वो दलाइल देंगे उसके अंदर को पुख्तगी आ जानी है मेरा चेहरा दिखाने से। तो ये एक बिल्कुल अब आप जी। ना आसिफ भाई आपने सारी चलें बात जी, इनको ये बता जो दी है। नेक्स्ट टाइम उमर साहब भी जब फारिग हो जाएं वो आए, और आप भी तैयब साहब आ जाएं, फिर दोबारा से एक बार गुफ्तगू इसके ऊपर हो जाएगी। मजीद खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल, मैं ठीक है, तो ठीक है, ये कहता हूँ कि बिल्कुल जिसने मुनाजरा करना भाई वो जाने और अबू हसन भाई आप जाने। हाँ जी। हाँ, बहरहाल ये कि आप जब अगर वो सामने आ गया और आपके ठीक इसने है, खुद ठीक है। अपने मुंह से बात कर दो ली। चार बंदे ठीक है, मिल के ना, तैयब तो साहब। उन्हें ये बात समझाएं कि भाई ये अगर मुनाजरा करना है ना, तो ये जो बीच में शर्त है ना, ये रखने का कोई फायदा नहीं है। टिकटॉक के ऊपर ये रवाज है। आसिफ भाई वो कह रहे जी, हैं कि जी। मैं नहीं समझा सकता, वो जाने और आप जाने। जब वो सामने आएंगे ना तब बात होगी। चलें अब चलें, तैयब ठीक साहब को है, इजाजत दे दें, चलें, ठीक तैयब है, साहब को ठीक हो, इजाजत दे दें। ठीक हो कॉलर और भी हैं, उनसे फिर गुफ्तगू करते अच्छा, हैं। जी, ठीक है, जी, ठीक है, उस्मान ठीक। भाई, उस्मान भाई, छोटी सी बात है मेरी, इसके बाद आप खाना बदोश भाई के साथ बात कर लें। तीन चीज़ें मैं ये